Mantramay Savitri Sri Aurobindo. The symbol done. It was the hour before gods awake. Across the path of the divine event, the huge foreboding mind of night alone, in her unlit temple of eternity, lay stretched immobile upon silence march. Almost one felt opaque, impenetrable, in the somber symbol of her eyeless muse, the abysm of the unbodied infinite. A fathomless zero occupied the world, a power fallen, boundless self awake. Between the first and the last nothingness, recalling the tenebrous womb from which it came, turned from the insoluble mystery of birth and the tardy process of mortality, and longed to reach its end and vacant not, as in a dark beginning of all things, a mute featureless semblance of the unknown, repeating forever the unconscious act, prolonging forever the unseen will, cradled the cosmic drowse of ignorant force, whose moved creative slumber kindles the suns and carries our lives in its somnambulist wheel, athwart the vain, enormous trance of space, its formless dipper without mind or life. A shadow spinning through a soulless void, thrown back once more into unthinking dreams, earth-wheeled, abandoned in the hollow gulf, forgetful of her spirit and her fate. Sri Aurobindo Ma. କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ମାସରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ଭାଷାରେ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦରେ କହିବା କିମ୍ବା ବୁଝେଇବା ଇମ୍ପସିବଲ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏକ ସାଧାରଣ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ଜନ୍ମ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୀମ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ।
ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେ ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ଜଗତର କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହେବ। ସେ ଯାହା କିଛି କରିବେ ତାହା ନିଜର ଭଲ ବା ନିଜର ସୁବିଧା ନିମିତ୍ତ ନୁହଁ, ତାହା ହେବ ସବୁ ଜଗତର ଭଲ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କଲିକତା ସହରର 1872 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ। ଦିବସଟି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିଶେଷ ସ୍ମରଣୀୟ। ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଗାଯୋଗ ଜଗତରେ ପ୍ରାୟ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦିବସଟି ହେଉଛି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ଦିଗରୁ ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦିନରେ, ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମର ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ କଲିକତା ସହରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୌର ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଚୀନ ଘୋଷ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କେ.ଡି. ଘୋଷ ନାମରେ ବି ଡାକୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତା ଥିଲେ କଲିକତା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଅନ୍ୟତମ ନେତା ଋଷି ରାଜନାରାୟଣ ବସୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଦେବୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଓ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଥିଲା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ଡାକ୍ତର। ବିଲାତରେ ବାସ କରି ଏବଂ ବିଲାତୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ବିଲାତର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରକୃତି ସବୁକିଛି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ତା ବୋଲି ସେ ଏହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହା ବି ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ଯେ ତା ତୁଳନାରେ ବିଲାତର ଚାଲିଚଳଣି ତୁଳନାରେ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରଖୁନାହିଁ। ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଦେଶକୁ ବା ଦେଶର କୌଣସି ବି ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ସେପରି ଜମା ବି ନୁହେଁ। ବରଂ ସେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ମମତା ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଉଦାର ପ୍ରକୃତିର, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତ କରୁଥିଲେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ପକେଟରୁ ପଇସା ସରିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଖୁଲନାର ଦାତା କର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଜୀବନର ସମୟ ଖୁଲନାରେ କଟିଥିଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଦେବୀ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ। ଋଷି ରାଜନାରାୟଣ ଘୋଷ ବସୁ ଥିଲେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ। ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ।
देश और देशर धर्म को से वास्तव में बहुत भल पाउथिले। देश सेवा ही थिला तांकर परम व्रत। एहीपरि देश सुधार जेहेतु सी जने ज्ञानी और ईश्वर भक्त थिले, सी स्वर्णलता देवी को मध्य सेही परि भाबरे शिक्षा देथिले। स्वर्णलता देवी थिले जने प्रगतिशील शिक्षिता नारी। साहित्य और काव्य रे तांकर बेस दक्षता थिला, किंतु स्वामी को घर को आसी स्वामी को परि चलिबा को से बाध्य हेले। श्री अरविंद स्वर्णलता देवी तृतीय पुत्र थिले। प्रथम पुत्र थिले विनय भूषण, द्वितीय पुत्र थिले मनमोहन, तृतीय पुत्र थिले श्री अरविंद, चतुर्थ पुत्री थिले सरोजिनी, तांको परे सबुठु सान पुत्र बारेंद्र कुमार। प्रभु जन्म हो सारा परे माँ स्वर्णलता देवी मानसिक विकृति घटिला। सेथिपाई श्री अरविंद जन्म हो सारा परे जो तीन भाई थिले तांकर भी मां सहित विशेष किसी संपर्क रहिला नहीं। कृष्णधन घोष तांकर प्रथम दुई पुत्रन को शिक्षा दीक्षा निमित्त जने इंग्रेजी शिक्षक नियुक्त कले एवं श्री अरविंद लालन पालन पाई जने इंग्रेजी केयरटेकर को नियुक्त कले। श्री अरविंद कहते मु मो निज पाई किछि करू नहीं, कारण मो निज पाई किछि रो मध्य प्रयोजक नहीं। मुक्ति नुहे कि अति मानस रूपांतर मध्य नुहे। मु जदि अति मानस रूपांतर चाहुथाए ताहार कारण हेउछि पृथ्वी निमित्त ताहा संपन्न करने को हेबो। आज आमे जो कोठी भी बसी न थाउ ना कहीं आमे एक स्वर रे आज कहिबा विक्ट्री टू द डिवाइन मदर। दिव्य जननींकर जय हेउ, पूर्ण जुगर जय हेउ, श्री अरविंदंकर जय हेउ। परिशेषरे समस्त को धन्यवाद। वंदे मातरम। पूज्य राधाकांत भाई को मु प्रणाम जनाउछि। आज विषय वस्तु हेउछि सावित्री महाकाव्य रे प्रतीकात्मक वर्णना। ए विषय रे आलोचना करबा पई आम सह अछंती पूज्य राधाकांत भाई। मु भाई को अनुरोध करूछि से तांका आलोचना रखिबे। भाई वंदे मातरम। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। नमामि श्रीमत्तमीरा अरविंदो। प्रभु पवित्र जन्म मासरे ये जो महान आध्यात्मिक यज्ञर आयोजन करा जायछि, सावित्री महाकाव्यर अध्ययन बोली कहिबा, आलोचना करिवार धृष्टता आमे करि परिबा नाही।
श्री अरविंदଙ୍କର श्रेष्ठ कृति सावित्री महाकाव्य अध्ययन करिवा सावित्री महाकाव्य को जीवन साधना क्षेत्र रे एक मंत्रतुल्य व्यवहार करि परिवा एवं सर्वोपरि सावित्री चेतनार आलोक रे जीवनर अंधकार आच्छन्न इलाका सबको किंचित मात्रा रे जदि आलोकित करा जाई पारे ताहेले एई भली कार्यक्रमर विशेष सार्थकता प्रतिपादित हेबो। विगत 2-3 वर्ष हैला अति सुंदर भाव रे प्रभुଙ୍କ जन्म मासरे एई कार्य संपादित होई आछि। हमर जहाको हमें ओडिया कैलेंडर बोली कहबा चंद्र कैलेंडर आषाढ़ श्रावण मास सेमिति किछि पवित्र मास थाए जेमिति जो मासटी वर्तमान चलछि श्रावण मास अनेक श्रावण मास को पवित्र मास बोली विवेचना करि थांती। श्रावण मास हैला कार्तिक मास हैला माघ मास हैला वैशाख मास हैला ए मास को पवित्र मास बोली साधारणतः विचार करा जाय थाए एवं अनेक सूची शुद्ध जीवन बंचिबा पई जो माने जिज्ञासु तांका भितरे आग्रह प्रकाश होई थाए। ठीक सेही भली हम मन विचार करू जे इंग्राजी जो कैलेंडर अच्छी ख्रीष्टीय कैलेंडर इंग्राजी कैलेंडर बोली हमें तक कहवा जनवरी ठू नहीं डिसेम्बर पर्यंत यही कैलेंडर रे देखिले आम पाई मध्य 4टी मास पवित्र मास भली आमको लगे। प्रथमटा है फेब्रुआरी मास मांकर जन्मदिन फेब्रुआरी 21 निश्चित भाव में एक पवित्र मास कारण नवा वर्ष आसु आसु लगी जाए मन टिके एकाग्र हो जाए बा मन भीतर एक धारणा सृष्टि हुए फेब्रुआरी आसी जीव अति शीघ्र एवं फेब्रुआरी रे मांकर जन्मदिन। ठीक सेमिति यदि आमे आसीबा अगस्त मास प्रभुଙ୍କ जन्मदिन पवित्र मास नवेम्बर मासरे तो अनेक घटना घटिला आमे समस्ते जानू लागी लगी 17 20 24 जदियो माँ शरीर त्याग करिथिले नवेम्बर मासरे सेही मासरे सिद्धि मध्य प्राप्त होइतिला नवेम्बर 24 1926 रे किंतु स्थूल शरीर त्याग को आमे एक साधारण जेमिति भाव रे घटना बोली बुझू ता सेमिति नुह यह थिला एक आध्यात्मिक बलिदान एक सूक्ष्म जगत रे रही माँ तांकर से महान कार्य को संपादन करबा पई तांक स्थूल शरीर को विसर्जन कले। ठीक से भाई डिसेम्बर मासरे पुणी 5 तारीख हो 9 तारीख हो 31 तारीख हो आमको पुणी थे आम उत्सव मुखरित बोली कहबा नहीं पुणी थे आमको डिसेम्बर मास एक पवित्र मास भाव में आम भितर एकाग्रता सृष्टि करबा पई एक प्रेरणा जागृत करि दिए। तो यही भाव में अगस्त मासटी प्रकृत एक पवित्र मास एवं जो दिन ठू यही कार्यक्रम आरंभ है प्रकृत रे लगुच जे अगस्त मासटा एक अध्यात्म चेतनार मास एक सावित्री मास श्री अरविंद को अध्ययन करवा श्री अरविंद को जीवनर नायक भाव में स्वीकार कर एक मास होची अगस्त मास। तो आज अगस्त मास 1 तारीख 31 तारीख पर्यंत सावित्री महाकाव्य निर्वाचित होइथिबा 31 विषय वस्तु पर विभिन्न आलोचक भाई अपा माने आलोचना करिवे। आज प्रथम दिन रे आमे आलोचना करिवा जे सावित्री महाकाव्य रे प्रतीकवाद जो रही प्रतीकर जो व्यवहार रही ताको आमे आलोचना करिवा। किंतु मोर अध्ययन रो मुझा संग्रह करि पारली लागे जे सबुजाक कथा संग्रह करि परिवा प्रकृत रे एते सहज कथा नुह। अनेक स्वतंत्र पुस्तक मध्य एई प्रसंग रे रही
सेमाने जे केते वर्षर प्रयास करिथिबे केते गभीर अध्ययन करिथिबे से कथा कहवा एक बाहुल्य मात्र हो जाई पारे। निश्चित भाव कठिन प्रयास से गवेषक माननकु एही उपलब्धि आनी पहुंचे देथिबो जे कौन सब प्रतीक श्री अरविंदर साहित्य बा श्री अरविंदर सावित्री महाकाव्य रे रही जाकू अति सुंदर भाव में मनुष्यर जीवन को सजाड़ी नेबा पई प्रेरणा प्रदान करिबा पई श्री अरविंद व्यवहार करिसंती। प्रतीक गुड़िकर वर्णना को जीवा पूर्वर आमे देखिबा सेही कथा जहाँ निहाती भाव में प्रथम दिन आलोचना करने आवश्यक अच्छे बोली अनुभव कली जे श्री अरविंदर समग्र कृति साहित्य कृति भितर श्रेष्ठ होची सावित्री महाकाव्य द वेद ऑफ द सुप्रामेंटल वर्ल्ड और सुप्रामेंटल एज बोली आमे कहिबा। अतिमानस जुगर यह हेब वेद जो सावित्री महाकाव्य रे सृष्टिर आरंभ ठू नहीं करी मनुष्यर अतीत वर्तमान एवं भविष्यतर एक निपुण वर्णना रही निखुण वर्णना रही। सावित्री महाकाव्य श्री अरविंद लेखुचंती केतेक कहंती जे बोरोदार रहणी समय श्री अरविंदर सावित्री महाकाव्य रचित होइतिला बोली करी किंतु तार कोनसी यथार्थ प्रमाण मिल पारु नाही एवं गोटे जगह श्री अरविंद कहउचंती जे तांकर जो पॉलिटिकल कैरियर थिला पॉलिटिकल कैरियर राजनीतिक तांकर जो जीवन थिला सही समय रे अनेक गुड़िए लेख रचना तांकर नष्ट हो जाइछि तेणु हुए तो बरोदार से जहाँ लिखी थिले ताहा नष्ट हो जाइथिवार संभावना रही। पुणी आमे जे देखिबा जे सावित्री महाकाव्य तापरे पंडिचेरी रहणी काल रे श्री अरविंद लिखुछंती तीनोटी पर्याय को आमे नेबा 1916 मसीहा रु 1920 मसीहा पर्यंत यह इट वाज ए नैरेटिव पोएम 1637 लाइन्स लॉन्ग 1916 रु 1920 मसीहा रे श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य लिखिले किंतु सेतेबेले ताहा केवल एक नैरेटिव पोएम्स थिला। महाभारत रे कहानी टी जेमिति अछि सही कहानी टी को से सेमिति टिके व्याख्या करी लिखि देइ छंती एवं सेठारे 1637 धाड़ी केवल मात्र थिला। आज सावित्री महाकाव्यर कलेवर को यदि आमे देखिबा जहा 23,837 लाइन ता तुलन ताहा अति छोट किंतु परवर्ती पर्याय श्री अरविंद 1930 1945 मसीह जो सावित्री महाकाव्य लिखुचंती सेतेबेले से धारणा करि साइतिलेनी जे सावित्री महाकाव्य होची तांकर सबुठु श्रेष्ठ साहित्य कार्य व साहित्य कृति। He began to consider Savitri as his major literary work. साहित्य सृष्टि मान भितर सावित्री सबुठु श्रेष्ठतम हेब एक कथा से बुझी साइतिलेनी एवं लेखुथिले पूर्वर लेखा होतबा कथा गुडी को संशोधन करुथिले एवं तृतीय पर्याय होची 1945 रो 1950 थ्रू डिक्टेशन करे रहितला तांकर आखिरे टिके जेतबेले अस्पष्ट देखा गला तापरे श्री अरविंद डाकुछंती एवं निरद वर्ण लेखुछंती। निरद वर्ण बा चंपकलाल भलिया विशिष्ट साधक से माने कहंती जे चमत्कार से दृश्य थिला सते जेमिति व्यासदेव भागवत डाकुछंती एवं गणेश लेखुछंती ताठु आहुरी अत्यंत चित्ताकर्षक थिला ए दृश्य। श्री अरविंद डाकुछंती एवं निरद वर्ण लेखि चली केतेबेले केमिति जदि निरद वर्ण कौनसी जगह अटकी करी पचारुछंती प्रभु को जे प्रभु कौन कहिले सेतेबेले टिके कष्ट अनुभव करुछंती श्री अरविंद एवं कहउछंती जे कौन कहितले से पर्यंत फेरी आसीबाकू तांको बहुत कष्ट हेउछि। से जहा हो
से महान साहित्य कृति संपादित हैला रचित हैला एवं आज जो महाकाव्य आम सामने रही सावित्री महाकाव्य ताहा तीनोटी भाग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 12टी सर्ग बा 12टी पर्व जहाँ को आम बुक बोली कहूँ एवं 49टी अध्याय रे आम पाखरे आमको प्राप्त होईछि। द्वितीय पर्याय जो सावित्री महाकाव्य श्री अरविंद लिखुचंती सेतेबेले से सावित्री महाकाव्यर ना दौरान सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल। सावित्री महाकाव्य को से निजे मध्य कहउचंती ए लीजेंड एंड ए सिंबल। तो एठू आमे सावित्री महाकाव्यर महत्व को बुझिबा पई सक्षम होई परिबा। इट इज ए लीजेंड और इट इज द लीजेंड। सही लीजेंड जो लीजेंड महाभारत वन पर्व रही सही आख्यायिका सही किंवदंती हूँ सावित्री महाकाव्य एवं सही एक ही समय रे ताहा मध्य हेउछि एक प्रतीक। अर्थात सावित्री महाकाव्य श्री अरविंद केवल आख्यायिकाटी को उपस्थापन करुनाहंती। सावित्री महाकाव्य आरंभ धाड़ी शेष धाड़ी पर्यंत प्रतीकात्मक भाव में श्री अरविंद मनुष्य जाति को बहुत किछि सूचना प्रदान करुछंती, बहुत किछि अवदान तांकर देई जाइछंती। आ गोटे दृष्टिकोण आम विचार करिबा जे सावित्री रचना करिबा आभिमुख्य कौन थाई पारे पश्चात रे से कथा यदि आम विचार करिबा एवं समग्र श्री अरविंदर दर्शन मनुष्य जाति को नहीं मनुष्यर जीवन को नहीं जगत को नहीं श्री अरविंदर जो विजन रही सूक्ष्म दृष्टि दिव्य दृष्टि ताकू चरितार्थ करने श्री अरविंदर अवतार ग्रहण कर एक उद्देश्य जोटा सावित्री महाकाव्यर शेष आड़ को कहगला जुग्म भाव में कारण अनेक समय कहे जे माँ एवं श्री अरविंद होती जुग्मावतार। तेणु सावित्री चरित्र माध्यम कहते टू रेज द वर्ल्ड टू गॉड इन टेकलेस लाइट टू ब्रिंग अस डाउन टू द वर्ल्ड ऑन अर्थ वी केम टू चेंज द अर्थली लाइफ टू लाइफ डिवाइन। तो यह हेउची सोल ऑब्जेक्ट बोली हमें कहिबा माँ एवं श्री अरविंदर निगू माने निहित उद्देश्य निगूढ़ उद्देश्य होची पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन में रूपांतरित करिबा। तेणु पार्थिव जीवन जहाँ सब अपूर्णता रही अदिव्यता रही अभाव रही से सब को दूर करी एक दिव्य जीवन पृथ्वी पृष्ठ रे प्रतिष्ठा करिबा सकाशे श्री अरविंद आरंभ ही सचेतन थिले। एक कथा आमे कहि परिबा जेमिति सुंदर भाव में ओरश्री अपा अति चमत्कार सावित्री रेसिटेशन हो बा जो संक्षिप्त जीवन अवतारण कले प्रदान कले ओरश्री अपा अति चमत्कार भाव में जैसे से प्राक युवकावस्था बेल को से सचेतन हो जाते जे पृथ्वी रे एक महान कार्य तांको संपादित करिवार अछि। तेणु यही काम करिवार अछि एटा श्री अरविंदर चेतना रे निश्चित भाव में दृढ़ होई प्रतिष्ठित होइतिला। तेणु इंग्लैंड रो प्रत्यावर्तन कला परे जेतेबेले से भारतीय ग्रंथादि अध्ययन करुछंती एवं जीवन रो एही असल रहस्य को उन्मोचित करिवा पई चाहुछंती सेतेबेले महाभारतर केतेक कहानी तांका सामना को आछि। महाभारत एवं भागवत महाभारत रे अछि भागवत रे अछि एवं किछि कवि माने काव्य से लिखुछंती छोट काव्य सावित्री महाकाव्य लिखिबा पूर्वसी लिखिछंती लव एंड डेथ लिखिछंती। किंतु जेतेबेले आमे प्रतीकात्मक कथा को आसीबा आमे उर्वशी रे एवं लव एंड डेथ रे जदिओ श्री अरविंद मृत्यु उपरे प्रेमर विजय ही पारे एक कथा को जानि पारिछंती बा प्रेम को मृत्यु कदापि पराजित करि पारिबो नाही एक कथा किछि वर्णना रही। तथापि मृत्यु पर संपूर्ण विजय होई नाही
एवं प्रसंग क्रमे जितेबाला महाकाव्य महाभारत से वन पर्व को आसी सावित्री उपाख्यान पढ़ुंट से श्रीअरविंद स्पष्ट भाव जानी पार्टी जे यह केवल एक उपाख्यान नुह, यह केवल एक आख्यायिका नुह, बरं यार प्रत्येक चरित्र होचंती गोटे गोटे प्रतीक, प्रत्येक चरित्र होचंती गोटे गोटे प्रतीक। एवं केमिति एक प्रतीक जो माने पृथ्वी पृष्ठ रे दिव्य जीवन को प्रतिष्ठा करिबा पई उद्दिष्ट ना गुड़िक केवल नाम नथिला, ना गुड़िकर पश्चात रही एक एक सत्य, एक एक तत्व। तेणु श्रीअरविंद अथर्स नोट रे लिखिले आम एठू प्रतीक आड़ को जीवा। प्रथम प्रतीक है तो श्रीअरविंद निजे स्वीकार करिसंती जो कथा मु आपण मानकु कहली जे सावित्री महाकाव्य जो से नामित करूछंती से कहउछंती ए लीजेंड एंड सिंबल, सो इट इज ए सिंबल। प्रथम धाड़ी शेष पर्यंत आम ताको प्रतीकात्मक भाव में व्यवहार करि परिबा। अथर्स नोट रे जहाँ लिखिले श्रीअरविंद ताहा होची एक चमत्कार कथा, ताकू ने आम मुख्यतः आमर आलोचना क्रम को आगे नहीं परिबा एवं किमिति प्रत्येक चरित्र प्रतीकात्मक भाव में इठारे तांकर भूमिका निर्वाह करिसंती से विषय आम सावित्री महाकाव्य को आधार करी आलोचना करिबा। अथर्स नोट रे श्रीअरविंद लिखिले द टेल ऑफ सत्यवान एंड सावित्री इज recited in the Mahabharata as a story of conjugal love conquering death। मृत्यु पर विजय लाभ करिथिबा एक दाम्पत्य प्रेमर आख्यायिका भाव में महाभारतर वन पर्व रे सत्यवान एवं सावित्री विषय उल्लेख रही। बट दिस लीजेंड इज as shown by many features of the human tale one of the symbolic myths of the Vedic psyche। एटा हूँ आख्यायिका गुड़िकर रहस्य। मनुष्य समाज रे प्रचलित थिबा अनेक कहानी गुड़िक प्रकृत मूल वस्तु हेउची वैदिक साहित्यर तत्व। तेणु महाभारत ए आख्यायिकाटी मध्य आम से वैदिक साहित्य एक तत्व भाव में ग्रहण करि परिबा। एवं चारोटी मुख्य चरित्रं को तांकर नामानुसार से माने को एक प्रतीकर प्रतिनिधित्व करुछंती, को एक चेतनार प्रतिनिधित्व करुछंती ताको उल्लेख करुछंती श्रीअरविंद। प्रथम सत्यवान के विषय कहउछंती सत्यवान इज द सोल carrying the divine truth of being within itself but descended into the grip of death and ignorance। तो सत्यवान होचंती सत्य को धारण करि थाए जे से होची सत्यवान। सत्यम धारयति इति सत्यवान। तो सत्य को धारण करुथुवा परम सत्य को धारण करुथुवा वहन करिथिबा एक पुण्यात्मा होचंती सत्यवान। किंतु दुखर कथा है जे डिसेंडेड इनटू द ग्रीप ऑफ डेथ एंड इग्नोरेंस। ए पृथ्वी पृष्ठ रे सी अज्ञानता एवं मृत्युर वज्रमुष्टि भितरे आबद्ध हो जाइछंती। एंड दिस इज द टेल ऑफ और दिस इज द फीचर ऑफ द एंटायर मैनकाइंड। एम माने दिव्य ज्ञान वहन करुथुवा सेही मानव सत्ता जहाँ को भागवत रे उल्लेख करागला मनीष देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। मनीष मात्र के आमे समस्ते होचु से दिव्य ज्ञान को वहन करिथिबा एक एक सत्ता। किंतु ए पार्थिव जीवन एमिति विपरीत धर्मी हो जाइछि जे आमे माने से मूल तत्व विच्युत हो जाई अज्ञानता एवं मृत्युर कबल रे कबलित हो जाइछु। सो यह होची मानव जातिर सबुठु बड़ ट्रेजेडी, बड़ आशंका बा बड़ विपद, बड़ दुख।
मनुष्य जाति पाई। तो एई अवस्था जो मनुष्य जाति रही सेतेबेले कौन होची सावित्री इज द डिवाइन वर्ड परावाक डॉटर ऑफ द सन सूर्यंक पुत्री गणेश ऑफ द सुप्रीम ट्रुथ परम सत्यर देवी सत्यमयी who comes down and is born to save जे पृथ्वी पृष्ठ को ओल्लाई आसी कौन करबा पई नहीं मृत्यु एवं अज्ञानतार वज्रमुष्टि भितर आबद्ध होइतिबा सत्यवान रूपी जीवसत्ता को उद्धार करबा पई। तेणु एई जगह आख्यायिकार जो वर्णना करागला जे सावित्री एवं सत्यवान वैदिक जुगर कहा जाऊ बा सत्य जुगर दुई जन आदर्श पतिपत्नी श्री अरविंदर सावित्री महाकाव्य रे सत्यवान एवं सावित्री को जदिओ पतिपत्नी भाव में चित्रित करा जायछि तथापि तार बृहत्तर अर्थ को जदि आमे जीवा एवरी ह्यूमन बीइंग समग्र मनुष्य सत्ता बा मनुष्य जाति होछि सत्यवान रो एक प्रतीक जहाँ भितर एक दिव्य सत्य रही किंतु दुर्भाग्यवशत मृत्यु एवं अज्ञानता कबल रही जाइथिबारु से दिव्य सत्य ता भितर प्रकाशित होई पारु नाही। एई भली एक अवस्था रे पीड़ित थवा मनुष्य जाति को उद्धार करबा पई सावित्री अवतरण होईछि। सावित्री को आमे मां कर एक विग्रह बोली कहि परिबा। परवर्ती गोटे दिन रे अन्य एक दिन रे हयतो 7 अगस्त मोर आ गोटे टॉपिक अछि बर्थ ऑफ द फ्लेम चाइल्ड मग्नि कन्यार जन्म सेतेबेले आमे सावित्री विषय आउ टिके विशेष आलोचना करिबा। आज आवश्यकता को देखु जो सावित्री अवतरण करुछंती सत्यवान को मृत्यु एवं अज्ञानतार वज्रमुष्टि उद्धार करबा पाई। तापरे अश्वपति द लॉर्ड ऑफ द हॉर्स हर ह्यूमन फादर सावित्री बापा होचंती अश्वपति। अश्व शक्तिर प्रतीक प्राण शक्तिर प्रतीक लाइफ एनर्जी एवं तार प्रभु जी अर्थात लाइफ एनर्जी ऊपर जार संपूर्ण नियंत्रण रही जितेंद्रिय सी होचंती अश्वपति। सो द नेम ऑफ अश्वपति इज नॉट ए मियर नेम। अश्वपति होची ए पर्सन हु हैज conquered over all his senses or who is dominating factor, who is dominant factor over all the senses, over the life energy is a man. सी होचंती सही व्यक्ति जे कि समग्र इंद्रिय शक्ति उपरे निजर जीवनी शक्ति उपरे प्राण शक्ति उपरे संयमता प्रतिष्ठा करि परिछंती एवं सही भली एक व्यक्ति ही प्रकृत रे आशा करि पारे पृथ्वी पृष्ठ को दिव्य चेतना को अवतरण करि आनिबारे। क्या अश्वपति होचंती सावित्री बापा। सावित्री जन्मर जी हेतु जी कारण तांकर साधनार कथा कहा जाइछि। आमे पर्यायक्रमे एमानकर विशेषत्व कोन आमे देखिबा केवल मो श्रीअरविंद अतस नोटे जहा कहउछंती ता कहउछि। तेणु अश्वपति होचंती लॉर्ड ऑफ तपस्या द कंसंट्रेटेड एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअल एंडिवोर अध्यात्म प्रयासर एक घनीभूत शक्ति होचंती अश्वपति दैट हेल्प्स अस टू राइज फ्रॉम द मोर्टल टू इमोर्टल प्लेन्स जहां हमको सहाय्य करूची मर जगत रु अमर जगत को प्रवेश करिवा पई उत्थित होई जिवा पई। तीनोटी चरित्र गले सत्यवान सावित्री अश्वपति। Another one is द्युमत्सेन फादर ऑफ सत्यवान। नहीं सत्यवान कर बापा द्युमत्सेन साळव। द्युमत्र अर्थ होची शाइनिंग सेनार अर्थ होची होस्ट द शाइनिंग होस्ट लॉर्ड ऑफ द शाइनिंग होस्ट ज्योतिर्मय सैनिक गणंकर से होचंती प्रभु। किंतु अगेन व्हाट इज द ट्रेजेडी दुख कण नहीं तांक राज्य से विताड़ित होइछंती छलना कपट प्रतारणा एवं से मध्य अंध हो जाइछंती। एटा हला सांप्रतिक जगत रे मनुष्यर स्थिति
सत्यवान मृत्यु एवं अज्ञानता कबल आबद्ध हो रही। द्युमत्सेन अंध एवं तांका राज्यरू आलोकर राज्यरू विताड़ित होइछन्ति। अर्थात मनुष्यर जीवन एमिति होइछि आलोकर अधिकारी आलोकर वाहक मनुष्य ता निज राज्यरू विताड़ित होइछि। तो एई भली अवस्था रे जेमिति आमे देखिबे पौराणिक परंपरा रे जेतेबेले भी देवासुर संग्राम होइछि देवता मानक जेतेबेले आसुरिक शक्ति विताड़ित कर दउछन्ति हंससंत कर दउछन्ति कष्ट प्रदान करूछन्ति सेतेबेले भगवान अवतार ग्रहण करन्ति एवं देवता मानकु सेई दुरावस्था उद्धार करन्ति। ठीक सेई बेले सावित्री कर बापा अश्वपति तपस्या करी सावित्री कर आवाहन करूछन्ति सावित्री को अवतरण करूछन्ति एवं मनुष्य जाति को से एई जंत्रणारु मुक्ति प्रदान करूछन्ति। Shining most, father of Satyavan is the divine mind for here fallen blind. Satyavan go Dyumatsen go the divine mind, दिव्य मन किंतु एठारे से अंध हो जाइछन्ति losing its celestial kingdom तांकर स्वर्गीय राज्य को से हराइछन्ति the celestial kingdom of vision and through that loss is kingdom of glory एवं से तांकर से महिमामय राज्य को मध्य हराइछन्ति। तापरे कहउछन्ति this is not a mere allegory. The characters are not personified qualities, but incarnation of emanation of living and conscious forces. एमाने केवल गोटे व्याख्या करा जाइथिबा चरित्र नुहंती बा केवल पर्सनिफाइड क्वालिटीज नुहंती व्यक्ति सत्ता भाव प्रकाशित होइथिबा गुणाधिकारी माने नुहंती बरं एमाने होचंती इनकार्नेशन और इमानेशन ऑफ द लिविंग एंड कॉन्शियस फोर्सेस जीवंत एवं सचेतन शक्ति गुड़िकर एमाने होचंती प्रसर्जन with whom we can enter into concrete talks. एटा हला आम पय वार्ता जे एई चरित्र मानक सहित आमे आम जीवन रे एक कंक्रीट टच एक निर्दिष्ट संपर्क रे आम आसी परिबा एक सुदृढ़ संपर्क रे आम आसी परिबा and they take human bodies in order to help men एवं सेमाने मध्य मनुष्य को सहायता करिवा पय मानुषी शरीर धारण करि पारंती and show him the way from his mortal state to a divine consciousness एवं सेमाने तांको मर चेतनारु दिव्य चेतनार को रास्ता प्रदर्शित कर दे पारंती and immortal life एवं एक अमर जीवन र वार्ता दे पारंती। तेणु एटा अथर्स नोट रे श्रीअरविंद कहउछंती एटा व्यतीत आमे जो चारोटी कैरेक्टर देखिले सत्यवान सावित्री अश्वपति एवं द्युमत्सेन ता बाहरे आउ केतेक चरित्र रहिचंती मुख्य एवं गौण चरित्र जहांकर मध्य इठारे प्रतीकात्मक वर्णना रहिछि बा प्रतीकात्मक उपस्थापन रहिछि। सेमाने हेले माळवी द क्वीन मदर ऑफ सावित्री देन क्वीन मदर ऑफ सत्यवान ना नहीं द डिवाइन सेज देवर्षि नारद एंड द गॉड ऑफ डेथ मृत्यु देवता आमे ओडिया रे तांकु सहजरे जम बोली जानिछु जम नाम रे नामित करिछु भारतीय संस्कृति जम बोली को हाजे ओडिया बोली नुह किंतु एस्टोनिशिंगली अति आश्चर्य भाव रे ए समग्र महाकाव्य रे जहा प्रकृति रे एवली एक कथा वस्तु पर आधारित होइछि श्री अरविंद मृत्यु देवता को जम बोली कोनसी जगह रे नामित करि नहांती कोनसी जगह नामित कोन हिथाई पारे कारण आमे कहि परिबा नाही एवं आम माने हुए तो गोटे बड़ ज्ञान रु वंचित हो गला बोली कहि परिबा केही काहे कि श्री अरविंद को एक कथा पचारिले नाही आमे कहि परिबा नाही काहरी चिंता भीतर को काहे कि गला नाही बा आम भाबा जे जो माने सेतेबेले श्री अरविंद गहण रे थिले से माने होता श्री अरविंद मनस्तत्व को बुझी पारिथिले एवं बुझी जाइथिले बोली पचारिले नाही किंतु वर्तमान आम मानक भली विकलिया लोक मानक पई एहा एक बड़ विषम कथा जे श्री अरविंद काहे कि मृत्यु देवता को जम बोली समग्र सावित्री महाकाव्य रे उल्लेख करि नहांती जदियो सेही चरित्र को उपस्थापन करथंती
तेणु यहाँ गोटे प्रयास रतकाली भी आलोचना करी रत्नप्रभा संगे जे गोटे प्रयास बेसी दिन प्रयास नुहे किसी समय प्रयास कले जे मृत्यु देवता को श्री अरविंद कौन कौन सब नाम नामित करिसेंती केतेबेले कहउछंती द डार्क गॉड केतेबेले सोफिस्ट गॉड तापर तो रेडिएंट गॉड एमिति आउ जो गॉड ऑफ डेथ ए सब ना गुडा अछि तो से ना गुडा हम काढिबा को पड़िबो एवं को परिप्रेक्षी काहे कि से ना रे तांको नामित करा जायछि ता मध्य अध्ययन करिवार गोटे दिग सावित्री महाकाव्य रे रहिछि जे व्हाट आर द नेम्स श्री अरविंद हैज यूज्ड फॉर द गॉड ऑफ डेथ मृत्यु देवतांक पई कोन सब ना श्री अरविंद व्यवहार करिसेंती एवं सेही ना को परिप्रेक्षी व्यवहार करिसेंती यह मध्य एक आलोचनार विषय वस्तु ही पारे से जहा से मध्य गोटे चरित्र एवं मृत्यु देवता जो चरित्र प्रतीक भाव में छिड़ा होती सावित्री महाकाव्य रे आम डिटेल जीवा पूर्व केवल सूचना दौची ताहला जे हाराहारी मनीष जीवन को जो भाई भाव में ग्रहण करिछि स्वीकार करिछि आमे तो ऑर्डिनरी मनीष माने आम पई जन्म मृत्यु एक रहस्य नुह जन्म मृत्यु गोटे प्रकार गोटे अचानक घटना भली आमको लागु जन्म होचो मरुचो किंतु जे यार पश्चात रे एक मिस्ट्री रही हमको जना नहीं जदि भी किसी मिस्ट्री रही मृत्युटा को आम अनिवार्य सत्य बोली कहूँ जीवन में मृत्यु ही सत्य बोली एवं ताहाकु ही प्रमाणित करुछंती मृत्यु देवता प्रथम पर्याय आप देखिए मृत्यु देवता बारंबार गुरुत्व आरोप करुछंती जे जीवन में मृत्यु ही सत्य मनुष्यर शेष शांति मृत्यु ही रही तेणु मृत्यु देवता घृण्य देवता नुहंती मृत्यु देवता होती एक आम कौन कह इप्सित देवता जहां कोल मनीष चिरशांति चिरविश्राम प्राप्त करि पारि थाए एही भाव में मृत्यु देवता निजको प्रोजेक्ट कर उपस्थापन कर सावित्री सम्मुखें आहरी मध्य आम देखा जे जीवन जोटा एक मूल प्रतिष्ठा जीवन से मूल प्रतिष्ठा होची प्रेम किंतु वर्तमान मनुष्यर जीवन रे संप्रति समाज रे संप्रति जगत रे प्रेमटी जो एक विकृत रूप धारण करिछि चेतना रे ताकू आधार करी मृत्यु देवता कहउछंती मनुष्यर चेतना रे प्रेम हेउछि एक नश्वर कथा एक अलिक वस्तु यार कौनसी स्थायित्व नाही प्रत्येक समय रे मनुष्य भितर एक विभ्रांति सृष्टि हुए प्रेम को नहीं करी एवं किसी समय पर घृणारे मध्य परिणत हो जाए जेमिति सावित्री मां सावित्री को कहउछंती सत्यवान को जो प्रेमर कथा तू कहूचु जानी था जे लव डाइज बिफोर लवर्स बोली कहउछंती प्रेमिकर मृत्यु पूर्व प्रेमर मृत्यु हो जाए जदि आमे हमर सामाजिक जीवन व्यवस्था को देखिए अनेक समय एमती घटना घटी प्रेम विवाह करिथिबे प्रेम विवाह करिबा पई केते संघर्ष होइतिबो उभय कुल भितरे किंतु सेही प्रेम विवाह रे मध्य एका संगे किछि दिन रहिला परे सेही प्रेम विवाह रे मध्य विच्छेद होउची आजिकाली जो माने को आमे सेलिब्रिटी बोली कहूछु आपण देखिबे विवाह प्रेम रु होउची किंतु मासे 2 मास वर्षे 2 वर्ष परे प्रेम रे विच्छेद होउची तेणु प्रेम मरी जाउची बिफोर लवर्स प्रेमिक मरिबा पूर्व प्रेम मरी जाउची तेणु तू प्रेम को एते गुरुत्व दे नहीं बोली सावित्री मां मध्य कहउचंती मानुषी चेतना तो एठारे जो कैरेक्टर माने रहले तांका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जे हमें देखिबे केते जण जो माने अध्यात्म चेतना रे समृद्ध जो माने गोटे तत्व को उपस्थापन करूचंती से माने हेले सावित्री अश्वपति एवं नारद देवर्षि नारद एमाने होचंती अध्यात्म चेतना रे समृद्ध सत्ता जो माने जीवनर असल सत्य कथा देखिछंती असल सत्य को जानिछंती जीवनर महनीय लक्ष्य को जानिछंती एवं सही लक्ष्य आड़ को जीवन प्रदावित होउची एक कथा मध्य से माने जानिछंती सेटा अनिवार्य किंतु वर्तमान जो अवस्था रे अछि मनुष्य जाति ताकू आधार करी जीवनर सत्य को भिन्न एक नकारात्मक ढंग रे जो विभिन्न दर्शन शास्त्र हो बा बौद्धिकतार प्रयोग प्रयास माध्यम रे हो जीवन को भिन्न दृष्टिकोण रो विचार करा जाउछि जीवन को नश्वर कहा जाउछि जीवन को निरर्थक बोली कहा जाउछि सार्थक शून्य बोली कहा जाउछि जीवन को एक प्रपंच जीवन को एक प्रहेलिका जीवन को एक माया बोली कहा जाउछि सेही तत्व को लेकरी जो माने
रही पक्षतर पक्ष नहीं सावित्री महाकाव्य भाव चरित्र भाव उपस्थापन करुछंती सावित्री माँ मालवी एवं अन्य दिगरे मृत्यु देवता। तो यही भाव में देखिए यहाँ दुईटी पक्ष भितर केतोटी चरित्र रही जो माने दुईटी तत्व को से माने उपस्थापन करुछंती। तो से दृष्टिकोण आम जो विचार करूँ सावित्री महाकाव्य प्रतीक भरपूर होकर रही। प्रथम प्रतीक होमें जो देखुचु द सिंबल डॉन। सावित्री महाकाव्य को नामित कले श्री अरविंद सिंबल एलिजेंट सिंबल बोलिकी यहाँ हूँ प्रथम आम गोटे वार्ता जे सावित्री महाकाव्य प्रतीक ही भरपूर होकर रही। आरंभर अध्यायटी को मध्य श्री अरविंद चमत्कार भाव नामित कले सिंबल डॉन प्रतीक उषा। उषा itself is a symbol of hope, symbol of day, symbol of light, dispelling ignorance, dispelling darkness. Goddess Usha or dawn announces the coming of the day, the coming of the light, the coming of the hope. उषा कण करती अंधकार को विदीर्ण करी अज्ञानता को विदीर्ण करी रात्रिर परिसमाप्ति घोषणा करी आगामी सूर्यालोकर आगामी दिवसर आगामी भविष्यतर से वार्ता घोषणा करती। तांकर अस्तित्व कम समय पाई रहे सिल्वर लाइन बोली कहा जाए सिल्वर लाइन रही। इमिडिएटली ही शी स्टेज फॉर ए शॉर्ट व्हाइल खूब कम जोटा प्रथम अध्याय कहगला खूब कम समय पे से रहती किंतु से कम समय भितर से एक विराट आशा किंतु से आशा केवल आशा रे नुह से आशा संभावना रे भरपूर हितवा एक आशा को से बहन करी आनती एवं समग्र जगत में से आशार वार्ता को दियंती जे रात्रिर जो राजत्व रही ताहार परिसमाप्ति घटी अंधकार परिसमाप्ति घटी निराशार परिसमाप्ति घटी अज्ञानतार परिसमाप्ति घटी आलोकर आविर्भाव घटी यही कथा सिंबल डॉन रे उपस्थापन करा जाउछि। प्रथम जोटा धाड़ीटा सेटा मध्ये आम पई चमत्कार एवं एठू आमे वैदिक प्रतीक को प्राप्त करि परिबा। कौन प्रथम धाड़ीटी जोटा अछि जे इट वाज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक देवतांक जागरण पूर्व ये मुहूर्त को भली एक स्थिति को यहाँ बुझाऊँ यहीटा हूँ एक वैदिक प्रतीकर एक प्रेजेंटेशन उपस्थापन श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य एक गोटे धाड़ी रे श्री अरविंद एक वैदिक तत्व को उपस्थापन करुछंती। से वैदिक तत्व होछि द स्टोरी ऑफ क्रिएशन। से गोटे समय सृष्टि आरंभ होई नै सेते कौन थिला देवता जागरण पूर्व मुहूर्त अर्थात सृष्टि आरंभ होई नै प्रलय पर सृष्टि आरंभ होई नै एवं जहाँ भी अच्छी कहा जाउछि fathomless zero occupied the world। कौन सी आड़े किछि नथिला एक अपरिमेय शून्य ए समग्र जगत को व्याप्त कर रहितिला। ए वार्ताटी आमे ऋग्वेद दशम मंडल सूक्त गोटे सूक्त रही से सूक्त को तो वेद रे सीधा सड़क नामित करा जाए नहीं किंतु आमे ताकू नासदीय सूक्त बोली कहू। नासदीय सूक्त रे वर्णना करा जाउछि नासद अशिन्नु सदास्ति तदानि नासिद्रजो नो व्योम परोजत् किमावरी वकुहकस्य शर्मन्नम्भ किमासीत गहनम गभीरम। एभली गोटे अवस्था जितेबाला सृष्टि रचनार आरंभ हुई नहीं ये प्रेजेंट सृष्टि सेठारे सत नथिला असत नथिला नासत नासत अशिन्नो असत अशिन्न सत नथिला असत नथिला अणु नथिला
परमाणु नथिला कि आकाश मध्य नथिला कोनसी आवरण नथिला ताहले केउठारे कोन किपरि थिला ताहा जानिबा योग्य अत्यंत ताहा जानिबा अत्यंत कठिन थिला। आउ कण नहीं न मृत्युर असित अमृतम सेठारे मृत्यु नथिला अमृत नथिला बा मृत्युर कोनसी चेतना थिला बा अमरत्व कोनसी चेतना मध्य नथिला। न अर्हीन रात्र दिन नथिला कि राति नथिला अन्न आसित कोनसी हमें न तर्हि रात्र अन्न असित दिवस नथिला रात्रि नथिला। अनदिवातम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्यन्य परकिं चनाश कोनसी भूमि आदि जड़ पदार्थ किछि नथिला ताहले सेठारे कोन केमिते थिला। आहुरी मध्य कहउचंती ताहले कोन थिला जो कहगला फेटमलेस जीरो ऑक्युपाइड द वर्ल्ड जोडा पढिले ए फॉरवर्डिंग माइंड of night, the huge forwarding mind of night, alone in her only temple of eternity, lest takes immobile upon silence merge। ये जो तीनोटी धाड़ी है यह से नासदिया सूक्तर 3 नंबर मंत्र को आम देखा ताहले प्राय आमको समान भली जाना पड़े। तम आसित तमसा सेतबेले तमस थिला गुढ़मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा ईदम रही तमस आसित तमसा थिला समस्त गतिशील पदार्थ सूक्ष्म रूपे सबुआड़े व्यापी रही थिला। इट वाज स्पेक्ट a fathomless zero occupied the world किंतु MP Pundicha को it was a zero but it was not a ordinary, it was not an ordinary zero as we understand zero। शून्य को आम जो भाव जीरो को जीरो बोली भाव सेटा नुह इट वाज ए प्रेग्नेंट जीरो। तेणु ओडिया रे कहे ताकू ए जो फेथमलेस जीरो यह शून्य गर्भ नथिला यह पूर्ण गर्भ थिला गर्भ तार पूर्ण हिकरी रहितिला सब जाक ता भितरे रहिछि किंतु कोनसीटा भी प्रकटित होई नाही। तो सेही बडी भाबरे तापरे पुनी एही अध्यायटी रे एटा तो नासदिया सूक्त गला एही अध्यायटी रे उषांकर वर्णना रहिछि केमिति भाबरे रात्रिर अंधकार को विदीर्ण करी उषा देवींकर आगमन होछि मो सावित्री महाकाव्य रो पढु नाही ताकू मध्य आमे जदि देखिबे वेद रे ऋग्वेद रे गोटे सूक्त रही उषा सूक्त बोली करी से उषा सूक्त रे समान वर्णना रही उषांकर आगमनी संबंध रे। तेणु डॉन इज द गॉडेस Sri Aurobindo has represented here dawn goddess। Dawn goddess also is a symbolic character in Sri Aurobindo Savitri। Sri Aurobindo Savitri dawn बा उषा देवींकर मध्य उल्लेख रही प्रतीकात्मक भाव उल्लेख रही सिंबल डॉन ठू आरंभ होई करी तेणु dawn symbolize करूची कोटा को awakening of the earth after the creation of the universe। सृष्टि हला ठीक जतबेले सृष्टि आरंभ हेबाको जाउची सेतेबेले पार्थिव चेतनार जागृति को उषा देवी बा डॉन से प्रतीकात्मक भाव में प्रकाशित करूछंती। ई सब कथा डॉन रही डॉन सिंबल डॉन आमे देखिबे सिंबल डॉन गला पर डॉन रो वर्णना शेष रे मध्य रही एटा मध्य गोटे टॉपिक अछि आपण माने जदि नियमित भाव में सावित्री आलोचना प्रसंग रे शामिल हेबे देखि परिबे जे एक प्रतीकात्मक उषारू सावित्री महाकाव्यर आरंभ होउछि एवं एक प्रतीकात्मक उषारे ही तार समाप्ति होउछि। जो उषाटी हमको प्रतीकात्मक था सृष्टि पूर्वर उषा एवं परवर्ती समय रे मृत्यु देवता ठारू सत्यवान को फेरे आसला परे जो इवनिंग आसी इवनिंग पर राति आसी नाइट आसी तापर एक दिव्य उषा एक नूतन उषा रही से उषार कथा श्री अरविंद वर्णना कर सावित्री महाकाव्य शेष 4-5टी धाड़ी जोटा रही शेष एकदम इपिलॉग रो शेष धाड़ी माने एकदम शेष धाड़ी 5 धाड़ी। नाइट स्प्लेंडिड विथ द मून ड्रीमिंग इन हेवन इन सिल्वर पीस possessed her luminous reign। She brooded through her stillness on a thought deep guarded by her mystic force of light and in her bosom nursed a greater dawn। से दिन रात्रि मध्य पूर्व रात्रि मध्य एक डॉन को लेकर आसीथिला एवं सेही डॉन रे रहिथिला एक दुस्वप्न भली घटना सत्यवान का मृत्यु हेबो किंतु पुणी थरे सत्यवान को जीवंत भाव में फेरे आणला परे संध्या आसी रात्रि आसी किंतु से रात्रि ता कोळे बहन करी रखिछि काहाको ए ग्रेटर डॉन एक बृहत्तर
उषा एक महत्तर उषा को धारण कर रही तेणु प्रतीकात्मक भाव में उषार वर्णना रही आहरी मध्य अनेक चरित्र माने आमे जो माइनर चरित्र मु आपण मन कहबी सावित्री महाकाव्य रे सब कथा आमे जो फिजिकल फेनोमेनन रही मन करंतु पहाड़ हैला नदी हैला समुद्र हैला वृक्षलता सेमानकर कण सांकेतिक अर्थ रही ताहा मध्य आमे सावित्री महाकाव्य रे विभिन्न अध्याय रे देखिबा को पाओ जदि आमे देखिबे जे सुंदर भाव में श्रीअरविंद वर्णना करुछंती विभिन्न जगह सी वर्णना करिछंती समुद्र वर्णना करिछंती नदीर वर्णना करिछंती आहुरी मध्य हमर दैनंदिन जो घटना गुडी अछि माने करंतु नाइट हैला डे हैला लाइट हैला कलर ए सबुर प्रतीकात्मक वर्णना सावित्री महाकाव्य रे हमकु देखिबा को मिले प्रतीकात्मक भाव में श्रीअरविंद से सबुर वर्णना करुछंती आमे डॉन देखिले डॉन पर यदि आमे देखिबे नाइट नाइट रात्रि केमिति प्रतीकात्मक वर्णना रही आमे जो कहले फॉरवर्डिंग माइंड ऑफ नाइट कथा कहले गोटे घन रात्रि कथा से प्रथम अध्याय रही देयर इज ए होल चैप्टर एंटायर चैप्टर डिसेंड इनटू नाइट से नाइट ता होची गोटे नकारात्मक रात्रि एंड अगेन देयर इज ए चैप्टर होल चैप्टर इटर्नल नाइट शाश्वत रजनी किंतु इटर्नल नाइट भितर मध्य रही एक विराट संभावना सावित्री ता भीतर को प्रवेश करुछंती इटर्नल लाइट भीतर को एवं ता भीतर से दिव्य संभावना को जागृत करुछंती ठीक सेमिति डे जोटा दिन दिवस कथा आमे कहूछु दिवस दिवस भाव में मध्य से बड़ी गोटे इटर्नल डे शाश्वत दिवस र कथा कहा जाउछि द इटर्नल डे सिंबलाइजेस द सटल मिस्टिक वर्ल्ड ऑफ जो गोटे अछि अध्याय डे पूरा अछि सेठारे इमोर्टल फिगर्स माने अछंती फोर फादर्स मानकर ताहा होची बासभूमि आउ जोटा वैदिक इन्फ्लुएंस रही आमे जब देखिबे आउ गोटे चैप्टर जोटा रही 680 81 पृष्ठ आपण देखिबे दुईटी चमत्कार वैदिक सिंबल देखिबा को मिले मु सूचना दउछि आपण मानकु विराट कर वर्णना रही विराट पुरुषंकर वर्णना रही सावित्री महाकाव्य रे 680 पृष्ठ रे एवं से विराट जो वर्णना रही वैदिक जदि आमे परंपरा देखिबे वैदिक परंपरा रे गोटे सूक्त रही पुरुष सूक्त से पुरुष सूक्तंक सहित विराट कर वर्णना करा जाय पारे तुलना करा जाय पारे ठीक सेमिति गोटे हिरण्यगर्भ कर वर्णना रही 681 पृष्ठ रे एवं हिरण्यगर्भं को आमे वेद रे गोटे हिरण्यगर्भ सूक्त मध्य अछि हिरण्यगर्भ सूक्त एवं आ गोटे सबुठु चमत्कार कथा हैला जे आमे जाको प्रतीकात्मक भाव में नौछु शब्द ब्रह्म कथा में देखिबे परावाक देयर इज ए डिस्क्रिप्शन अबाउट सिंबल ओम विषय रही 311 पृष्ठ रे रही एवं व्हाट इज ओम टी को श्रीअरविंद पूरा कैपिटल फॉर्म रे लिखुचंती एवं ओम रो कथा कहउचंती 311 पृष्ठ रे हमें देखिबे हाँ 311 पृष्ठ सिंबल ओम बोली गोटे अच्छी 311 31 पृष्ठ देखले पड़ी पारे से जहाँ भी गोटे सावित्री महाकाव्य रे ओम विषय रे वर्णना करुछंती श्रीअरविंद एवं आमे ओम शब्द विषय रे समस्ते सचेतन आमे जानू पृष्ठाटी परवर्ती समय करी सिंबल ओम बोली करी अछि उल्लेख अछि सिंबल ओम ओम होची मां का भाषा रे सिग्नेचर ऑफ द सुप्रीम एवं ओम रा जो महत्व रही ताहा मध्य अति प्रतीकात्मक भाव में रही आमे देखिबे तैतरीय उपनिषद रे ओम रा व्याख्या रही ओम रा महत्व कौन एवं ओम को किमिति भाव में प्रतीकात्मक भाव सिंबल ओम बोली कहि चंती श्रीअरविंद तेणु ओम रा प्रतीक कौन नहीं तैतरीय उपनिषद रा अष्टम अनुवाद रही अष्टम अनुवाद रा प्रथम जो मंत्र रही से ओम रा वर्णना रही ओम इति ब्रह्म ओम होचंती ब्रह्म
ओम इतीदम सर्वम ओम होची सबु किछि ओमित्यत तनुकृतिः स्म वा अप्यो श्रावयत्य श्रावयन्ति ओमीति सामानि गायन्ति साम गान रे ओम र वर्णना रही ओम शोमीति शस्त्राणि संसन्ति एमिति भाबरे तैत्तरीय उपनिषद रे ओम र वर्णना रही एवं ओम रे चतुर्विध जो तीनोटी शब्द में जेतेबेले ताको इंग्लिश को नौछु जेतेबेले आमे इंग्लिश को नौछु ओम रे ए यू एम कथा कहूछु यह होची ओम र मूल शब्द बोली करि कहा जाय ए यू एम एवं ए मुंडक उपनिषद रे मध्य ओम र से भली वर्णना रही जे यह केवल स्वप्नावस्था जाग्रत अवस्था तुरीय अवस्था ये सबुर प्रतीक बोली करि ओम को कहा जाउची मुंडक उपनिषद रे तो शब्दर वर्णना रही प्रतीक भाव में नेचुरल फेनोमेनन कथा कहली तापर आहुरी देखिले वृक्षलता मानक रही पशुपक्षी रही देवादेवी वर्णना मध्य सावित्री महाकाव्य रे रही चमत्कार भाव में आम देखिए मुझे पृष्ठा कथा कही दूसरी विल फाइंड कौ देवादेवी मान ना रही नहीं कालींकर वर्णना रही सावित्री महाकाव्य रे प्रतीक भाव में आई एम काली व्हेन आई किल कालींकर वर्णना पृष्ठा 235 509 एवं 535 रही दुर्गांकर वर्णना रही 509 पृष्ठ 561 पृष्ठ शिवंकर वर्णना रही विष्णुंकर वर्णना रही ब्रह्मांकर वर्णना रही जो त्रिदेव कथा में कहूँ विष्णुंकर कथा 416 विशेष किसी ना किंतु कह जाऊँगी नारद जिते पृथ्वी पृष्ठ को अवतरण करुँच से विष्णुंकर नाम गान करी वर्णना रही बट विष्णु इज फाउंड मेंशन इन सावित्री महाकाव्य हु इज द सिंबॉलिक फीचर ऑफ द प्रिजर्वर पालनकर्ता विष्णुंकर उल्लेख अच्छी सृष्टिकर्ता ब्रह्मांकर ना उल्लेख अच्छी संहारकर्ता शिवंकर ना उल्लेख अच्छी शिवंकर ना तीनोटी पृष्ठ रही 247 343 525 पृष्ठ शिवंकर उल्लेख रही ब्रह्मांकर ना उल्लेख रही 525 पृष्ठ कृष्ण एवं राधांकर ना उल्लेख रही 525 पृष्ठ देवादेवी गला मुझे नेचुरल फेनोमेनन कथा कहली नेचुरल फेनोमेनन अर्थात कलर वर्णना विभिन्न समय आप देखिए विभिन्न कलर वर्णना इरिडिसेंट कथा कह बहुवर्णर कथा कह व्हाइट प्योर व्हाइट कथा कह व्हाइट रे कथा शुभ्र ज्योतिर कथा कह जोटा कि प्यूरिटी प्रतीक संख्यार आम देखिए कलर हेले बार्ड्स वर्णना रही बोथ योर ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल वेस्टर्न सिंबल्स अनेक किसी वेस्टर्न सिंबल्स सावित्री महाकाव्य रही वेस्टर्न सिंबल्स यथा आम देखिले ट्राइपॉड कथा अच्छी ओराकल कथा अच्छी स्पिंक्स कथा अच्छी एवं वेकस कथा अच्छी बहुत समय आम आलोचना करूँ ग्रीक देवादेवी मान अनेक कथा आम आलोचना करूँ जोटा प्रतीकात्मक भाव में श्रीअरविंद सावित्री महाकाव्य उपस्थापन करिसेंती ड्रागन कथा उल्लेख अच्छी तो ये सब कथा आम देखिले समग्र सावित्री महाकाव्य उभय पाश्चात्य एवं प्राच्य जगतर अनेक प्रतीक सावित्री महाकाव्य सन्निवेशित होती जहाँ आम चेतना को प्रसारित करने दिगरे सहायक होता है तेणु गोटे अधिवेशन गोटे समय सबकि को लाइन बाय लाइन जीवा संभव हो पार ना प्रकृत में यह गोटे आम मार्ग खोलीदेला आम एमती कहे प्राकृतिक प्रतीक से तार केमिति वर्णना रही पशुपक्षी प्रतीकर केमिति वर्णना रही सावित्री महाकाव्य चरित्र मान तो जो महनीय चरित्र गुड़िक थे से वर्णना रही एभली भाव में भाग भाग कर कथाटी को आलोचना करा जाई पारे सर्वोपरि आम शेष देखा जे सावित्री इटसेल्फ इज ए सिंबल ऑफ इमोर्टालिटी इश्यू टू दी मोर्टाल रेस सावित्री महाकाव्य होची मोर्टाल रेस मर जाति को अमरत्व प्रदान करिवार एक प्रतीक जहाँ मु आरंभ करी किंतु फ्लो रे भूली जाइली श्रीअरविंद सावित्री महाकाव्य कहीं ये कले बोली करी किए कहले जे सावित्री काव्य महाकाव्य प्रकृत में मृत्यु पर विजय होती पूर्वर जो उर्वशी लिखिले लव एंड डेथ लिखिले से मृत्यु उपर विजय हुए ना उर्वशी तो मृत्यु पर आदौ विजय हुई ना गोटे भिन्न प्रसंगर
कथा थिला लव एंड डेथ रे जदियो मृत्यु सहित समझौता होईछि सालिश होईछि रुरु से राजी होचंती तांका आयुरु अधा देबा पई प्रियंवदा को एवं सेही शर्त रे प्रियंवदा को जीवन दान करा जाउछि किंतु सावित्री होछि एकमात्र महाकाव्य बा एकमात्र आख्यायिका जो आख्यायिका रे मृत्यु सरेंडर करूछि एवं मृत्यु रूपांतर होछन मृत्यु देवता रूपांतर हे जाउछंती से डार्क गॉड से रेडिएंट गॉड रे रूपांतरित होछंती बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सावित्री सावित्रींकर उपस्थिति जोगो सावित्रींकर आविर्भाव जोगो घन अंधार देवता ज्योतिर्मय देवता रे परिणत होछंती एवं से ज्योतिर्मय देवता एक ज्योतिर्मय जगत वार्ता प्रदान करुछंती सावित्री एवं सत्यवान को एवं सही प्रदान करुछंती जाओ तमर पृथ्वी को प्रत्यावर्तन फल रे जगत रे प्रकृत रे दिव्य जीवन प्रतिष्ठा हेबो तेणु सावित्री महाकाव्यर ए मुंडर से मुंड पर्यंत कौन सी ना कौन सी प्रतीकर एक उपस्थिति रही जहाँ आमर पार्थिव जीवन को तो परिचालित निश्चित भाव में करुच्ची किंतु से प्रतीक भितर एक इंगित मध्य रोची पार्थिव चेतना को अतिक्रम करी आमे से अतिलौकिक चेतना को प्राप्त करि परिबे परा चेतना को प्राप्त करि परिबे एवं पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन रे रूपांतरित कर दे परिबे पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन रे रूपांतरित करिवार एक प्रतीकात्मक साहित्य होची सावित्री महाकाव्य तेणु सावित्री महाकाव्य आम भितर थिबा सेही संभावना को संभव कर दियंतु सावित्री महाकाव्य पई हमर जो आग्रह रही सावित्री एटा कौन साहित्यिक पृष्ठभूमि रो हमर आग्रह नहीं कौन मान सम्मान जस प्रतिष्ठा पई ये आग्रह नहीं प्रकृति जीवन को बुझीवा पई प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करबा पई प्रभु को नै जीवन बंचीवा पई सावित्री महाकाव्य प्रति हम भितर जो आग्रह रही से आग्रह निश्चित भाव में स्वीकृत हेबा मांक द्वारा एवं सावित्री अध्ययन माध्यम आम जीवन जहाँ सब रुक्षता रही आम जीवन जहाँ सब अपरिपक्वता रही अपूर्णता रही धीरे धीरे पूर्ण होगा लगे परिपक्व होगा लगे रुक्षता सब नम्रता विनम्रता परिवर्तन हेब यही आशा रखी माँ शरीर निकट में प्रार्थना करी आज आलोचना को आम ये रखा समस्त को अशेष धन्यवाद माँ निकट कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। धन्यवाद धन्यवाद जनाउछि कुनी परिचालिका अरश्री अपांकु अति सुंदर कंठस्वर रे तांकर परिचालना दक्षता को आजिर विषय सावित्री महाकाव्य रे प्रतीकात्मक वर्णना की चमत्कार भावे हम राधाकांत भाई कले ताको उपस्थापना कृतज्ञता देवा पाई भाषा पाउ नहीं केवल श्रद्धार प्रणाम समस्त तरफरु जनाउछि मही सावित्री महाकाव्य रे भाई अभिनिवेश और प्रवेश किए बा न जाने आम मान मध्यरु ताहा आज धन्य से जीवन जार केवल सावित्री रे मन प्रदान करिसंती परम प्रभु जेउथिरे सृष्टिर जावतीय गुप्तधन धन्य धन्य भाई अपा जे अनुसरती ए सावित्री कृतज्ञता समस्त गढ़ुथिबा पई एक जागृत धरित्री कृतज्ञता जनाउछि माँ और प्रभु दिव्य चरण प्रदान करिसंती आमको ये सौभाग्य महान प्रभु जन्म मास ये अगस्ट मास को भी कृतज्ञता देथिबारु अपूर्व सुजोग और सुंदर अभिज्ञता समस्त को प्रणाम अति सुंदर विषय वस्तु एते व्यापक जे आम ताकू धरी रखिबा को भी योग्य होई उठिबा को पड़िबो सेही गुप्तधनर संधान पाइले भी आम बार बार हरई बसु यहपरी एक महार्क सुजोग आम किंचित परिमाण भी ग्रहण जदि करुचे केते भाग्यवान आ समस्त को एथिपाई धन्यवाद और कृतज्ञता आसंता काली रही सावित्री उपरे टॉपिक रही सावित्री पराबाक जीवंत शक्ति आलोचना रखिबे आमर समस्त प्रिय भवेश भाई और काली परिचालना करेंगे आकृत्यपा एवं कृतज्ञता अर्पण करेंगे आमर
ପ୍ରିୟ ଶଶିରେଖା ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। Be with me now and always. Envelop me with your presence. Raise and purify me with your touch. Inhabit me with your living image. Transform all dullness and darkness into bright and perfect faith. Transform all restlessness and agitation into inviolable calm and peace. Transform all attachment into a deep and stainless purity. Mother, liberate and change me. Perfect your child. Mother, be with me now and always. Envelop me with your presence. Raise and purify me with your touch. Inhabit me with your living image.